have already handed in, while 26 participants have not yet submitted their video. So they are please requested to do it fast. Sir, can you repeat the list of the participants who have successfully submitted? जिनके पास कोई कमेंट नहीं आया उनका सक्सेसफुली सबमिटेड है ना? If anybody has received the comment, Sir, comment, sir. Shall we give some time, sir, if it is not possible after this class? After this, सर कमेंट कहाँ भेज रहे हैं आप सर? Actually, I send it to PPT. if there is any problem in anyone's video, they might have received a comment on their email. Email पे आया होगा. Yeah, yes, I got, sir. So I want some time to make it more. Okay, on fine, no video. issue. So for that, you will have to be in touch with Mr. Mazhar Zaidi, the technical assistant. He will give you all the technical assistant. No issue. Okay, sir. Thank जी सर. चलिए. अच्छा मजहर, दो चार लोगों की कुछ प्रॉब्लम थे, उनको थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा ताकि वो अपलोड. बेहतर है सर, बेहतर है. जी सर. जी सर. हाँ बोलिए. हाँ तो मदर साहब थोड़ा सा एक दो लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन लोगों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना? दे विल कांटेक्ट यू. Mazhar, are you there, Mr. Mazhar Zaidi? जी सर. So Mr. Mazhar is with us basically. So those participants who are having any problem in uploading their video, they may please contact Mazhar Zaidi. है ना? Please tell me on WhatsApp what's the problem. I'll help you out. So he will coordinate with you. Fine. So okay, as far as today's session is concerned, today is our resource person, Professor Mansaf Alam, is already with us. Basically, he has joined the session, and I can see that most of the participants have already joined. So, Professor Mansaf Alam Sahab, are you there? With your kind permission, may I start the session, sir? Yes sir, I'm here. Okay, fine. So, we are fortunate enough that today we do have a very learned professor, Professor Mansaf Alam Sahab, and he is the resource person for today's session, and he will be engaging both the sessions of today. First session will be from 3:30 to 5, and we'll have a break of 30 minutes, and after that another session will be there from 5:30 to 7. Professor Mansaf Alam, first of all, I would like to express our sincere thanks on behalf of UGC HRDC MU for sparing your time, sir, for engaging these two sessions over there. Whenever I have contacted Professor Mansaf, he is always ready to provide his services for this university, and particularly for UGC MMTC Center, AMU Aligarh. So I am very much thankful to Professor Mansaf for all your kindness, sir. Professor Mansaf has a teaching experience of more than 22 years, and currently he is serving as professor in the Department of Computer Science, Jamia Millia Islamia. Professor Mansaf is having a very good mix of academic experiences as well as administrative experiences. As far as his research experience is concerned, he has been a very avid researcher, and during his academics, he has completed many projects. Just to name a few projects, I can see that he has completed project, namely an effective framework for managing university data in cloud-based environment, which was funded by JMI under innovative research activities. And another project was there, which was planning atlas for class 2 towns of Uttar Pradesh. And he has this project was awarded by NRDMS. It was a DST project basically. So he's conducted these two projects, apart from many other fellowships and like that. Professor Mansaf is a Visvesvaraya Young Faculty Research Fellow, and apart from that, he has conducted many industrial projects basically. So he is having a very good mix of theoretical as well as practical knowledge. As far as his research publications are concerned, he has published more than 70 research papers in various journals of repute, while he has published more than 30 papers in conferences, and he has more than 30 book chapters which has been published in various Scopus Index and IEEE Index books, books and book chapters. Apart from that, Professor Mansaf has been an author in various books which has been
published by various reputed publications like CRC is there, IGI Global is there, Springer is there, and like that. So he has been has been associated with author with more than 10 books over there, which I can see, published from Springer, CRC, and such reputed publications. Apart from that, Professor Mansaf has 2 patents in his credit. One is Australian patent on an artificial intelligence-based smart dustbin. Another is Indian patent on IoT-based stress management system. So these 2 patents are there in his credit. Apart from that, he has been taking part in various conferences, and he has chaired many sessions over there, and he has conducted many special sessions over there in many conferences. As far as very relevant to these, the theme of this short-term course is there. One special session was conducted on artificial intelligence application in business, marketing, and big data analytics. That was there in 3rd International Conference on Emerging Technology in Data Mining Information Technology. And another such session was there on artificial intelligence-based data analytics for business and marketing. That was in International Conference on Machine Intelligence and Data Science applications over there. So he has been very actively involved in academics, research, as well as he has conducted many administrative activities in the universities as well. So in Jamia Millia Islamia, he has been member of a very high level committee constituted by the Vice Chancellor. And apart from that, he has served as Deputy Director of IQAC Jamia Millia Islamia and Deputy Proctor of Jamia Millia Islamia, and like that. Apart from that, he has been member of many or various bodies constituted by Ministry of Education. And just to maintain the security, I'd not like to name these bodies basically, because some of the informations are of confidential nature, but he is member of many bodies constituted by the government of India. So today, if you want to see the biota of this, so the biota of Professor Mansaf Alam is the testimony of his achievement over there. It is publicly available on the internet. So whenever you do have the free time, you can go through it. I don't want to take much of your time in just reading the very exhaustive biodata of Professor Mansaf Alam. But again, I would tell you that now I'm going to put you in a very safe hands for 2 sessions, and you will enjoy the session with Professor Mansaf Alam, and not only enjoy, but you will learn a lot of things. But before I hand over the floor to Professor Mansaf Alam, I would again request all of you to please make this session interactive one. Don't make it as a monologue one. So the professor is just giving and speaking in the monologue way, and you are just on the receiving end. Make it a 2-way communication, make it an interactive session, as you have made it in the previous session with Kapil Modia. So Mr. Kapil Modia, that was a very good session. If you make it interactive session, even the resource person can deliver a lot of things and can tell you. Many a times it happens that the resource person has forget something, but whenever you ask the question, he just capitalize all these things and try to answer your question. So just polite request with all of you that make it an interactive session. And now I would request Professor Mansaf Alam to please continue this. Thank you, Professor Mansaf. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for nice introduction. I'm really very happy that sir is conducting this program. You know, sir is my guru and teacher, Ustad. बहुत कुछ सीखा मैंने सर से का जो नेचर है उससे भी बहुत कुछ सीखा मैंने. जो कुछ भी हूं मैं आज सर के सपोर्ट से हूं. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में आकर कुछ इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए. You know, you all are teacher and it is very difficult to teach to a teacher. So I'm not going to teach you, but I'm going to share some information with you people. I'll also try to learn from you. Teaching is 2-way communications. So I'll learn something from you in the question answer session, and I'll give some information to you. Now I'm going to start the formal presentation. Respected Director, HRDC, MU, Coordinator, faculty members, dear participants,
Good afternoon to all of you. Today's topic for discussion is artificial intelligence in education. Before going to start it, just I want to know whether you prefer English, Hindi or both. Language, preferred language? Dear participants, English and Hindi. You can mix it, sir. mix. English and Hindi. That's great. There is no So I'll issue. use the mix language so that anyone can understand in their own language easily. You know, sir was asking about the interactive session. The session should be interactive. If you have any doubt, you can clear. And in the last half an hour, we'll discuss more about it. So let us start. Yes, I'm going to share my PPT. I hope my PPT is visible to everyone. Your PPT. Oh. Yeah. Now my PPT is visible to everyone. I hope so. Yes, it's visible, sir. Okay. So the concept of artificial intelligence in education. We all are associated with the education. We all are in the field of education. But right now, we are going to use the concept of artificial intelligence in education. Friend, you know, artificial intelligence is the oldest concept, not the new concept. But recently, it is very popular. But why? क्या रीजन है कि रिसेंटली इतना पॉपुलर हो गया? 22 साल 24 साल पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था कि इसका यूज कहां होगा। देखिए आज के डेट में आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही पॉपुलर हो गया है। हम जानेंगे कि रीजन क्या है, क्यों आखिर ये रिसेंट ईयर में artificial intelligence is very popular. Even the concept of artificial intelligence is used in almost all field of research, almost all sector in the society. Everywhere people are using the concept of artificial intelligence right now. तो सवाल है कि ये पॉपुलर क्यों हुआ? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं आपको कि नो डेटा नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर डेटा मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए एक बहुत ही स्मॉल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और एक इंटेलिजेंस क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटेलिजेंस, आप किसी भी टीचर को, किसी स्टूडेंट को आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये टीचर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये रिसर्चर बहुत इंटेलिजेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी एंड हाउ ए ह्यूमन बीइंग बिकम ए इंटेलिजेंट? जस्ट वन एग्जांपल। एक बच्चा आज पैदा हुआ, उससे पूछिएगा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कुछ नहीं बोलेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। जब को सुनता है, जो भी सवाल पूछेंगे उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा कुछ 1-2 दिन के बच्चे से। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में देयर इज नो डेटा, दैट्स व्हाई दे डोंट रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। उसके दिमाग में कोई डेटा नहीं है जो आपको रेस्पॉन्ड करे। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्या करते हैं, वो न्यू ब्रेन को हम डेटा देते हैं। हम उसको कहते हैं बोलो बेटा पापा, वो डेटा हमने डाल, बोलो चाचा, हमने डेटा डाल। आहिस्ते आहिस्ते हम उसको डेटा देना शुरू कर देते हैं, उसको समझाना शुरू कर देते हैं कि ये अपना ही, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ये करना है।
आहिस्ते आहिस्ते जब उसको डेटा मिल जाता है 1 साल तक, 2 साल तक, उसके बाद जब आप बोलेंगे तो फिर वो रिएक्ट करता है और आपको जवाब देता है। इसका मतलब कि जितना ही ज्यादा डेटा होगा उसको, उतना ही ज्यादा उसको वो रेस्पॉन्ड देगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते 2 साल 3 साल में अच्छे डेटा हो जाता है, वो बातें करने लगता है, जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब देता है। यानी कि नो डेटा नो इंटेलिजेंस। जैसे किसी ने कहा था एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि ये एक दिन के जन्म में बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिएगा आप, और 1 साल बाद उस जंगल में जाकर बच्चे से मिलिए, क्या रियलाइज करेंगे आप कि जो जानवरों की आवाज है, बोली है, सब कुछ उसको अडॉप्ट कर लेता है। यानी कि जैसा ही हम डेटा अपने ब्रेन को देंगे वैसा ही वो रिएक्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आज आप सब टीचर हैं, आप 1 महीना या 3 महीना या 6 महीना क्लास कराते हैं एक सेमेस्टर, यानी 6 मंथ तक आप डेटा स्टूडेंट के ब्रेन में डालते हैं, और 6 मंथ के बाद आप टेस्ट करते हैं कि क्या जो हमने डेटा जो ब्रेन में दिया है स्टूडेंट को, क्या उसको सही समझ में आई या नहीं, उसको आप टेस्ट करते हैं। तो 1 महीना आप एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम के रिजल्ट से पता चलता है कि नहीं, जो हमने इसको सिखाया है उसने परफेक्टली सीख लिया है, और इसको जाकर मार्केट में इस्तेमाल कर सकता है उस नॉलेज का। यानी अभी आप प्रूफ हो गया कि नो डेटा नो इंटेलिजेंसी, मोर डेटा मोर इंटेलिजेंसी। तो जब भी हमारे पास मैक्सिमम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जाता है हमारे ब्रेन में, तो हम कहते हैं हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट क्योंकि हम जो सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब अपने ब्रेन से सर्च करके आपको रेस्पॉन्ड करता है, तो आप रियलाइज करते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। यानी कि एक शॉर्ट स्मॉल लाइन में, रिकॉल द पास्ट बेस्ड ऑन प्रेजेंट। That means you have a power of thinking. You can think, you can take the decision which is right, which is wrong. That means the intelligence. अब ये इंटेलिजेंसी हम सब में है, हर एक इंसान के पास है। अब इस इंटेलिजेंसी को हमें कंप्यूटर को देना है, हमें मशीन को देना है। We want to make the machine intelligent. We want to make the machine that work like a human being. हम चाहते हैं कि अपने मशीन को, अपने कंप्यूटर को इस तरह से डेटा दें ताकि मशीन इंसान के तरह काम करना शुरू कर दे। एंड नाउ इट इज पॉसिबल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो इंटेलिजेंसी है, हम डेटा जो स्टूडेंट को देते हैं या पार्टिसिपेंट्स को देते हैं, या मैं खुद रिसीव करता हूं डेटा, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो सेम अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू गिव टू द मशीन सो दैट मशीन कैन बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। एक सवाल है यहां पे कि क्या अगर नेटवर्क नहीं है तो हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? आंसर होगा नो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो मैं एक सिंगल मैसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी कि मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हमें कनेक्टिविटी की जरूरत होती। अब हम इंसान हैं, आप मशीन को छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, 2 लोग जब बातें करते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब कि उन दोनों में कनेक्टिविटी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो नेटवर्क ट्रांसमिट, आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। अनदर एग्जांपल लेट्स सी, आप 3 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिसमें से एक आदमी कुछ देर बाद बोलता है हाँ भाई क्या बातें हो रही है। इसका मतलब कि 3 लोग तो वहां पे थे, लेकिन 3 में से 2 ही नेटवर्क में थे, तीसरा आदमी नेटवर्क नहीं था। इसलिए जो कुछ भी आपका खड़ा था बगल में बोल रहे थे वो नहीं समझ रहा था, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, उसका नेटवर्क कहीं और कनेक्टेड। तो जब हम क्लासरूम में जाते हैं या कहीं भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कनेक्शन, वी हैव टू मेक द नेटवर्क।
If there is no connection, there is no network, will not able to send the data or receive the data. इसका मतलब है कि हमें नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क बनाएंगे कैसे? जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि आप सब टीचर, हम क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में जाने के बाद अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को हम स्टूडेंट के ब्रेन में स्टोर करना चाहते हैं। यानी कि हम अपने डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर वो स्टूडेंट आपसे कनेक्टेड नहीं है तो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। अब बहुत एग्जांपल देखिएगा कि आप जब क्लासरूम से बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछिएगा कि बेटा आपको समझ में आया? काफी बच्चों का रिस्पांस होगा कि 1.5 घंटे में मैंने कुछ भी नहीं समझा। उसका 2 रीजन है। पहला रीजन है कि जो आपने नेटवर्क नहीं बनाया, या नेटवर्क बनाया तो उस नेटवर्क से वो स्टूडेंट बाहर था, क्योंकि वो नेटवर्क में ही नहीं था। जब कितने भी अच्छे से पढ़ा लीजिए उसको नहीं समझ में आएगा। वही स्टूडेंट जब पिक्चर देखने जाता है तो 3 घंटे के मूवी पूरी स्टोरी के साथ, सॉन्ग के साथ उसे याद हो जाता है। नॉवेल पढ़ता है, मोटी बुक है नॉवेल की पूरे कंटेंट उसके दिमाग पे आ जाता है। लेकिन जब वो टेक्स्ट बुक पढ़ता है, पतली सी बुक, तो उसके पूरे कंटेंट उसके दिमाग में नहीं होता है। सीरियल देखता है, पूरे के पूरे कंटेंट उसके दिमाग पे आ जाता है। ऐसा क्यों? एक ही ब्रेन है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कैसे काम करता है। ऐसे करता है कि अगर पिक्चर देखने जाता है तो पिक्चर से उसका नेटवर्क बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। जब नॉवेल पढ़ता है तो नॉवेल से कनेक्शन बन जाता है। जब वो सीरियल देखता है तो सीरियल से कनेक्शन बन जाता है। जब टेक्स्ट बुक पढ़ता है उसका कनेक्शन नहीं होता, इसलिए डेटा ट्रांसमिट नहीं होता। क्लासरूम में कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए डेटा ट्रांसमिट नहीं होता। अब कनेक्शन बनाएंगे कैसे? अब देखिए, हर टीचर को आना चाहिए कि हाउ टू मेक द कनेक्शन, हाउ टू एस्टेब्लिश द कनेक्शंस अमंग द पीपल। ये मैं बात कर रहा हूं, देखिए कोई वायर की जरूरत नहीं है। देखिए वायरलेस है, हम डिवाइस से कनेक्ट है ना, तो आपका भी ब्रेन एक नोड है, दूसरे टीचर का भी ब्रेन एक नोड है, स्टूडेंट का है, और सब कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट कैसे होता है आप देखिएगा। देयर आर 4 एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द ह्यूमन माइंड। और जो इस इंसान के माइंड में, दिमाग पे जो डेटा होता है ना, वो बिग डेटा होता है। बिग डेटा का मतलब है वो ब्रेन में इमेज डेटा है, वीडियो डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, और वेरी हाई वॉल्यूम में डेटा है, और स्पीड से हमारा डेटा मूवमेंट करता है ब्रेन में। आप नोटिस कीजिएगा, अभी आप बहुत खुश हैं और थोड़ी ही देर में किसी ने कोई ऐसा बात बोल दे कि अपना राज हो जाते हैं। यानी कि बिल्कुल आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है किसी इंसान को देखकर या किसी प्रोडक्ट को देखकर। अजीब सा होता है एक्टिविटी, यानी वो आपका जो डेटा है वो डिस्टर्ब होता है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कनेक्शन बनाना है। तो देयर आर 4 एक्टिविटीज टेक प्लेस इन योर माइंड। फर्स्ट वन अटेंशन, सेकेंड वन रिहर्सल, थर्ड वन इनकोडिंग, एंड फोर्थ वन रिट्रीवल। ये 4 तरह का ही एक्टिविटीज टेक प्लेस होती है आपके ब्रेन में, और यही 4 एक्टिविटीज को हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में यूज करते हैं। मैं रिलेट करके आपको दिखाऊंगा ये एक्टिविटीज कैसे रिलेट होता है रियल लाइफ में। पहला है, हर एक कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होता है। उसी तरह से इंसान में इनपुट आउटपुट ऑर्गन्स होते हैं। यानी आप कुछ ऑर्गन्स आपके हैं जिससे हम डेटा को रिसीव करते हैं, कुछ ऑर्गन्स है जिससे हम अपने डेटा को रिलीज करते हैं। जैसे आपका ईयर इनपुट ऑर्गन्स है, माउथ आउटपुट है, आई इनपुट ऑर्गन्स है, तो वेरियस ऑर्गन्स है। अब जैसे ही किसी प्रोग्राम में जाते हैं या किसी से बात करने आप जाते हैं, एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक बात मैं भूल जाऊंगा, बता दूं आपको। आप कभी कभी देखिएगा कि किसी इंसान से आपको बात करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी किसी से बात करने लगते हैं ना, तो वो इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है आपको,
और किसी दूसरे इंसान से बात कीजिएगा तो उससे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। ये रियल लाइफ में होता है। रीजन क्या है? इन द वे ऑफ डिलीवरिंग द डेटा फ्रॉम ए पर्सन दैट इज एक्सेप्टेबल बाय यू। अगर आपने जिस इंसान से बात करने जा रहे हैं, आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया और वे ऑफ डिलीवरिंग द डेटा बाय द पर्सन फ्रॉम whom you connected is nice, then you attract with the person। और फिर आपका घंटों लग जाएगा उससे बातें करते और आपको टाइम का पता नहीं चलता। कभी कभी आप देखिएगा कि कोई पिक्चर देखते देखते आपको इमरजेंसी भी हो तो नहीं जाते, क्योंकि उससे आप कनेक्ट हो चुके हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन जो दूसरा इंसान है उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो वो कितने भी अच्छा बात करेगा आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस मैटर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेटा आ ही नहीं रहा है। तो जो इनपुट आउटपुट ऑर्गन्स है उसको आपको एक्टिवेट करना है इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में एक्टिवेट करेंगे यानी कि आपको अटेंटिव होना है, अटेंशन। इफ यू आर अटेंटिव, समवन आस्क समथिंग, so you have to make yourself attentive to establish the connections with the other person who should also be attentive, then connection is established, either in a program or in a classroom or somewhere else. Once the connection is established, then the next step is start in your brain, that is known as the rehearsal. So as soon as you deliver a message, deliver the information, and that information, that data received by the person who is standing or sitting in front of you after the connection, establishment of the connection. After receiving the data by the receiver, the brain of receiver start the second activities, that is known as the rehearsal, by asking the question. If the person who received your message and asked the question what, that means that a student, that participants, that person brain is working as a student. If two questions arises in the mind of a human being, a person who received your information or a data, what and how, that means the brain of that person is working as a teacher. If three questions arises in the mind of the receiver, what, how, and why, that means the brain of that receiver is working as a scientist. बहुत ही पॉपुलर कोट है, फेमस स्टोरी है कि एक इंसान एक दरख्त के पास बैठे हुए थे, उसमें फल लगा हुआ था। ये पूरे दुनिया को पता है कि अगर किसी दरख्त पे, पेड़ पे फल लगा हुआ है, टूटने के बाद नीचे ही गिरेगा। किसी ने सवाल नहीं किया कि ये क्यों नीचे आया, लेकिन एक पर्सन ने सवाल किया कि व्हाई दिस एप्पल फॉल डाउन, व्हाई नॉट अप। उससे सोचिए कि कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा, यार ये कैसे इंसान है, कैसी बातें कर रहा है। जब किसी दरख्त से, पौधे से कोई फल टूटेगा तो नीचे ही आएगा, लेकिन ये कैसे कह रहे कि क्यों आया। और नेम ऑफ दैट पर्सन इज न्यूटन। उन्होंने इस पर रिसर्च करके बताया कि क्यों कोई चीज, फल जब टूटता है तो नीचे आता है। तो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द क्वालिटी डेटा। So after asking the question what, how, and why, you make the data quality received from someone else. And after making the data quality, your brain start the next activities, that is known as the encoding process. Encoding process means transferring the data from short-term memory to long-term memory. अब वो डेटा आपका जो शॉर्ट टर्म में था वो लॉन्ग टर्म में स्टोर हो गया, और जिंदगी में कभी भी उस डेटा को आप लूज नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे।
मरते दम तक वो डेटा याद रहेगा आपको। एंड द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट इन द ब्रेन, दैट इज द रिट्रीवल। यानी कि जैसे ही कोई मैसेज आप रिसीव करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, कोई क्वेश्चन रिसीव करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सर्च फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड डिलीवर थ्रू द आउटपुट ऑर्गन्स। तो जब आपको आंसर मिल जाता है तो आप कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट मैन, शी इज इंटेलिजेंट वुमन, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट क्यों कहा आपने? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अब स्टोर हो चुका है उसके ब्रेन में, और जो भी सवाल करेंगे आप जवाब आपको मिलेगा। तो ये रहा अबाउट द ह्यूमन ब्रेन एंड हाउ वी मैनेज द डेटा इन द ह्यूमन ब्रेन। अब सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू गिव टू द मशीन। अब हम जब मशीन को इसी इंटेलिजेंसी को देंगे तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला जो कंसेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया, दैट वाज 1943। मैकुलस ने आप कैलकुलस बनाया, लॉजिकल कैलकुलस का डेवलप किया, एक आइडिया दिया कि हम मशीन में इंटेलिजेंसी दे सकते हैं। उसके बाद आपका ये डेवलप हुआ टेस्ट ट्यूनिंग मशीन, जिसको कभी कहते हैं टेलर अर्निंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स कह सकते, उन्होंने स्टार्ट किया था। 1950 में ट्यूनिंग पब्लिश्ड एक कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंसी पे पेपर सर्च किया। उसके बाद ये जर्नी चलता रहा। फिर 1956 में डॉट मॉथ ने एक कॉन्फ्रेंस में एक कंसेप्ट दिया, एमसी मूर्ति ने, कि रॉकस्टार एंड द एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। अब 1956 में ये कंसेप्ट आ गया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फील्ड ऑफ स्टडी मान लेते हैं। यानी कि ये कंसेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐड हुआ 1956 में एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इन द एजुकेशन। उसके बाद आया 1957 में इसमें न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट आ गया था 97 में। उसके बाद 1967 में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंसेप्ट आया और प्रॉब्लम सॉल्विंग को करना शुरू कर दिया गया। आफ्टर दैट 1974 people started working it and research due to some reason and they people show the interest in artificial intelligence research। यानी एक्चुअल में जो रिसर्च शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, people took interest in 1974 से रिसर्च का काम शुरू हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद आया हमारा 1980 में कंसेप्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट सिस्टम, वो कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। इसी तरह से ये जर्नी चलता रहा, पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लास्ट में आप देखिएगा कि आप लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पॉपुलराइज होने लगा तो हम बात करते हैं 2002 में रोबोट का कंसेप्ट आ गया। 2002 में रोबोट का इंट्रोड्यूस हो गया। फिर आहिस्ते आहिस्ते जर्नी चला। 2011 में आईबीएम ने वाटसन एक मशीन बना दिया डिफीट के लिए, एंड टू फार्मर जॉर्डी एंड कंपनी, वहां पे यूज हुआ एग्रीकल्चर में। एंड देन 2012 एआई स्टार्टअप डीप माइंड डेवलप ए डीप न्यूरल नेटवर्क। तो अब नोटिस कीजिएगा इस बात को, अगर आप रिसर्च करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में, तो न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टार्ट हो गया 2011-2012 से रिसर्च का बहुत ज्यादा शुरू हो गया। फिर 14 में फेसबुक का कंसेप्ट आ गया, उसमें यूज हुआ फेसबुक में डीप फेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ।
आज सुना होगा नाम आपने, डीप फेक, साइबर क्राइम। तो 2014 में फेसबुक ने एक क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कहा गया था डीप फेस, ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम दैट कैन रिकॉग्नाइज फेस विद नियर ह्यूमन एक्यूरेसी, यानी कि ह्यूमन के फेस को रिकॉग्नाइज किया जाए। फेसबुक ने क्रिएट किया था, जिसका नाम था डीप फेस। आहिस्ते आहिस्ते ये जर्नी आगे बढ़ा। उसके बाद आपका आया 2015 में अल्फागो का डेवलप किया एंड डीप माइंड का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से करते करते अब लास्ट में आया आपका 2020 की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं। 2020 में आप देखिएगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में। 2000 के आसपास से शुरू हुआ हमारा ये कोरोना का। उस टाइम में आया ओपन एआई, 2020 में आया ओपन एआई रिलीज GPT-3, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी कि 2020 में एक कंसेप्ट ऐसा आ गया चैट जीपीटी का। तो आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चैट जीपीटी का कंसेप्ट आया। उसके बाद आया हमारा 2021 में, जिसको कहते हैं डीप माइंड ईयरफेड दैट सॉल्व द प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें आहिस्ते से 2020 के बाद बहुत सारे रिसर्च आए और डिफरेंट काम करने लगे। उसके बाद 2022 में द गूगल फायर इंजीनियर ब्लैक एंड लोमेन इवर द एस्टीम दैट एप्लीकेशन इन द, यानी कि अब गूगल ने 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में, अब देखिए 2023 में बहुत आगे बढ़ चुका है, जो कि हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना शुरू होगा। सेकेंड सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को लेकर चलेंगे। आपको बताऊंगा मैं कि क्लासरूम में कौन कौन सा एआई टूल को आप यूज कर सकते हैं टू मेक योर क्लास मोर इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव। आप नोट्स बनाने में कौन सा एआई का टूल को यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या चल रहा है। उसके बाद हम एजुकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस दिखाएंगे। आज के डेट में अगर किसी से पूछिए कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 72% पीपल से यस। जितने भी दुनिया में लोग हैं उनसे पूछिएगा कि क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुना है, एवरीवन आंसर्ड यस, बट 17% नो। बहुत ऐसे लोग हैं जो विलेज में रहते हैं, जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है। वो 17% पीपल जो बिल्कुल अवेयर नहीं है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड 11% नॉट श्योर। दिस इज द सर्वे अकॉर्डिंग टू द पेटेंगा सर्वे। In a screen, there are 3 stages of artificial intelligence. In a green color, that is right now in the existence, यानी अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। जो हम इस पीपीटी में येलो कलर का दिखाया है, अंडर डेवलपिंग है, एंड द वायलेट कलर जो मैंने दिखाया इस पीपीटी में, वो आपका फ्यूचर है। तो देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है, used in almost all field of research, means AI based machine having the ability to learn, that is 57%। अभी क्या है, 57% एबिलिटी है AI बेस्ड मशीन टू लर्न करने के लिए। 50% सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी एआई बेस्ड मशीन अभी आज के डेट में 50% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। 37%
interpret the speech. 35% ability to replicate the human interactions. यानी ह्यूमन के इंटरेक्शंस को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी अभी 35% है. एंड एआई बेस्ड मशीन कैन थिंक लॉजिकली 51%. अब ये देखिए, कभी कभी हम बात करते हैं अपने दोस्तों से तो आप कहते हैं यार लॉजिकली बात करो. कोई ऐसी बात आप सुनते हो और आपको लगता है कि कुछ भी बोल रहा है, तो आप कहते हैं कि प्लीज स्पीक लॉजिकली, डिस्कस लॉजिकली, थिंक लॉजिकली. यानी कोई चीज बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है. नाउ द सिनेरियो, एआई बेस्ड मशीन इन द प्रेजेंट think logically, that is 51%. And this is present. Underdeveloping, that is 19% for play games. अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. आजकल सुना होगा, आप इंस्टाग्राम देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, बहुत सारे गेमिंग एप्स आ गए हैं गेम खेलने के लिए, अर्निंग करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए एआई बेस्ड. आज के डेट में एक नया फील्ड ही जनरेट हो गया है जिसको हम कहते हैं गेम इंडस्ट्री. बहुत सारे कंपनी खुल रही है, इसमें नौकरियां भी मिल रही है. तो एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन दैट इज अंडर डेवलपिंग, अंडर डेवलप. यानी गेम के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, कंपनियां भी खुल रही है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर अंडर डेवलपिंग. 18% run on the surveillance on the people and 31% replace the human being job right now. लेकिन अब सिनेरियो बदलने जा रहा है. जो मेरा प्रेडिक्शंस है, 6-7 साल के बाद a lot of crisis will be arised in the world. दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने जा रही है ड्यू टू एआई. देखिए, मैं अच्छी बात बता रहा हूं कि आप ठीक है एआई को यूज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हर टेक्नोलॉजी का प्रॉस एंड कॉन्स होता है, तो इसका निगेटिव भी इंपैक्ट होगा ऑन द सोसाइटी. पहला कि लोगों की नौकरियां चली जाएगी. यानी कि अभी 31% है, ये 60%, 70%, 80%, 90%, 99% भी हो सकता है कि लोगों की नौकरियां चली जाएगी, तो क्राइसिस होगा. अब सवाल कहेंगे, मेरा बहुत लोगों से डिस्कशन हुआ, लोग कहते हैं नहीं एआई से नौकरियां नहीं जाएगी. तो हम कहा ओके, लेकिन मुझे लगता है जाएगी. मैं बताऊंगा आपको इसको प्रूफ के साथ कि कैसे. आज के डेट में मैं एग्जांपल दूं आपको. मान लीजिए एक कंपनी में, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी. पहला एग्जांपल लेते हैं हम, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. उसमें आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो एक लेबर होता है. लेबर क्या करता है कि अपने सामान को इधर से उधर करता है लेबर. दूसरा क्या होता है, इंग्रेडिएंट, यानी कि दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट करना, आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशन की नौकरी है. तीसरा नौकरी होती है मशीन ऑपरेटर का, जो मशीन को चलाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए. चौथी नौकरी होती है मैनेजर की, जो उस चीजों को मैनेज करेगा. पांचवा है आपके पास कि मार्केटिंग ऑफिसर है, मार्केटिंग मैनेजर है, यानी प्रोडक्ट को मैनेज करेगा. उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर होगा, उसको ये करने के लिए. एक कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होगा, उस डेटा को मैनेज करने के लिए. अब नौकरी कैसे जा रही है, अब देखिए, और किसकी नौकरी बच रही है. जो लेबर था, लेबर की जगह एआई बेस्ड मशीन को डेवलप कर दिया वो सामान को लाने के लिए. इवन अभी बताऊं आपको, गांव में खेती करने के लिए किसान भी बन चुका है रोबोट. यानी धान की रोपनी भी किसान, वो रोबोट करेगा. खेत को बीज लगाने के लिए भी रोबोट है. तो कंपनी में रोबोट से हम सामान को इधर से उधर कर सकते हैं. तो लेबर की नौकरी गई.
उसके बाद आपको आता है पैकेजर का। पैकेजिंग के लिए मशीन बन गया, तब पैकेजर की नौकरी चली गई। मार्केटिंग जो जाकर लोगों को समझाता था मार्केट में कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए, अब आपको सोशल मीडिया के जरिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए वो बेचे, तो उनकी नौकरी चली गई। मैनेजमेंट के लिए मैनेजर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है। आपको IoT बेस्ड, AI बेस्ड मशीन है जो मशीन खराब होगा पहले ही बता देगा और उसको सही कर देगा। तो अब देखिए आहिस्ते आहिस्ते डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर नौकरियां जा रही है। आपको एक यहां पे और कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। शुरू से जब दुनिया का एग्जिस्टेंस हुआ तो पहला टेक्नोलॉजी था जिस इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री 1.0। इंडस्ट्री 1.0 में क्या होता था, सोसाइटी में हम लेबर काम करते थे, यानी सब कुछ जो होता था नेचुरल जो प्रोडक्ट है उससे होता था। जैसे आपने कोई भी लेबर है, घर बनाते थे तो मिट्टी का घर बनाते थे, घर बनाते थे तो जंगल से जो पौधे होते थे उसको लिया आपने, उससे बना लिया। नेचुरल चीजें सारी होती थी। बैलगाड़ी, उससे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेचर में चीज था, नेचुरल था, उसे यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। आपने देखा होगा मिट्टी का बर्तन बनता था, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का प्लेट, मिट्टी का चम्मच, मिट्टी का सब कुछ। आहिस्ते आहिस्ते रेवोल्यूशन हुआ। साइंटिस्टों ने कहा कि हम आग और पानी को एक साथ मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद उन्होंने प्रिपेयर किया स्टीम। तब आया इंडस्ट्री 2.0 जिसको कहते हैं मैकेनिकल एरा, यानी मैकेनिकली चीजें होने लगी। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, पंपिंग सेट, स्टीम इंजन, इस तरह से चलने लगा। चल रहा था, लोग अब सरवाइव कर रहे थे सोसाइटी में। अचानक एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर, यानी कि इंडस्ट्री 2.0 में कंप्यूटर को ऐड किया गया, तो दैट बिकम द इंडस्ट्री 3.0। और जैसे ही कंप्यूटर आया पूरे दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया और लोग कहने लगे कि लोगों की नौकरियां जाएगी, और बिल्कुल गई नौकरियां लोगों की। जब उस वक्त कंप्यूटर आया था दुनिया में तो एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खुल गए थे, यानी कि कंप्यूटर की नौकरियां मिलने लगी थी। STG, NIT, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन खुल गए थे और लोग इसे कोर्स करने लगे। इवन कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सबके लोग इसमें आना शुरू हो गए थे। बहुत डिबेट हुआ, लेकिन नौकरियां आई, नौकरियां गई तो नौकरियां जनरेट हुई, यानी कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ। एक तरफ नौकरी गई तो दूसरी तरफ नौकरियां जनरेट हुई। तो ये यहां पे सिद्धांत लागू होता है कि जो इंसान वातावरण के अनुकूलित अपने आप को नहीं बदलता है उसका जीवाश्म प्राप्त हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू चेंज। ये इंडस्ट्री 3.0 चलना शुरू हो गया। आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेडेशन शुरू हो गया इंडस्ट्री 3.0 में, यानी कि नोटिस किया 2000 में कंप्यूटर साइंस की नौकरियां जाने लगी। 2000 से पहले बहुत बूम था, जो सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, यूएस चला गया, बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे चले गए। किसी भी टेक्नोलॉजी का किसी का एक वक्त होता है और वक्त बदलते देर नहीं लगता है। क्या होता है कि जब आप आगे जाते हो ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, थोड़ा पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए। कंप्यूटर में चलता रहा, आहिस्ते आहिस्ते कुछ सालों बाद उसमें रिसेशन आया और नया कंसेप्ट आया, जिस कंसेप्ट को ऐड किया गया 3.0 में, दैट्स बिकम इंडस्ट्री 4.0। यानी ये कंसेप्ट आया, कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, इंडस्ट्रियल IoT, सब एक साथ कंबाइन करके रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। दैट बिकम द इंडस्ट्री 4.0 एंड 5.0।
तो अब देखिए यहाँ पे नौकरियां जा रही है, और कोई कहता है कि नहीं जा रही, तो ऐसा नहीं है, जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पे रिसर्च पे, एआई रिसर्च पे पॉलिसी बनानी चाहिए सोसाइटी के लिए। कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ही बुरा होता है। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमने प्रेजेंट और अंडर डेवलपिंग की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। 10% टेक ओवर द वर्ल्ड। एआई अभी फ्यूचर में 10% टेक ओवर कर लेगा। 8% कंट्रोल योर माइंड, यानी कि आपके माइंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा। सोचिए कितना डेंजरस चीज है कि अगर एआई के जरिए हम किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो कितना डेंजरस होगा। चलिए मान लीजिए कि हम एआई के जरिए आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया, अच्छे काम के लिए तो ठीक है, लेकिन हमने आपके माइंड को कंट्रोल किया बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए, कितना डेंजरस है। आज के डेट में आप देखिएगा, आज भी आपका माइंड कंट्रोल हो रहा है। आप जो कुछ बोलते हैं आप नहीं बोलते हैं, आपसे बुलवाया जाता है लेकिन आपको एहसास भी नहीं होता है। डिफरेंट टाइप का डेटा को, डिफरेंट सोर्स से डेटा को आपके ब्रेन में फिट किया जाता है, यानी पीपुल आर फिटिंग देयर ओन वर्ड टू योर माइंड एंड यू आर स्पीकिंग द सेम वर्ड। अब नोटिस कीजिएगा सब लोग, यही हो रहा है। तो अभी डिवाइस के जरिए नहीं कंट्रोल हो रहा आपका माइंड, योर माइंड इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ए डेटा। बट इन कमिंग फ्यूचर people make the devices to control your mind। अब लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, इतना सारा डेवलप हो गया, क्या आप मशीन को इमोशन दे सकते हैं? यस, यू कैन गिव द इमोशन टू द मशीन। यानी अभी तक 14% इमोशन दे सकते हैं, यानी मशीन कैन वीप, मशीन कैन फील सैड, बी हैप्पी after looking at you or seeing the situations if you are in a problem। अगर आप दुखी हैं तो आपका दोस्त दुखी हो जाएगा, दोस्त यानी कि मशीन। आप खुश है तो वो खुश हो जाएगा। इमोशन दे सकते। यहां पे एक और मैं बात बताऊं आपको, और थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में नैरो एआई, सेकेंड वन जनरल एआई एंड थर्ड वन स्ट्रॉन्ग एआई। अभी तक दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं नैरो एआई पे काम कर रहे हैं, सिर्फ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन को ट्रेन करना, etc। जैसे ही जनरल एआई में स्विच ओवर लोग करें, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, नैरो एआई प्रेजेंट पे चल रहा, जनरल एआई इज द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये स्टार्ट भी हो गया। और देखिएगा इसका इंपैक्ट क्या होगा। जनरल एआई का मतलब है कि जस्ट मशीन कैन वर्क लाइक ए ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान की जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो हम मशीन में देने जा रहे हैं फ्यूचर में, जिसको हम कहते हैं जनरल एआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी हुआ नहीं, होने वाला है। उसके बाद जैसे ही स्ट्रॉन्ग एआई आएगा, दैट मशीन हैविंग द कैपेबिलिटी बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग, जो इंसान की कैपेबिलिटीज है, इंसान के कैपेबिलिटी से भी आगे कैपेबिलिटीज हो जाएगी मशीन में। तो सोचिए व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इफ ए मशीन कैन वर्क बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग, तो व्हाट इज द नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इंसान के वजूद पे खतरा हो गया। क्या करेगा इंसान जब मशीन सब कुछ कर लेगा? बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट द प्रेजेंट। इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आ गया फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऑल गवर्नमेंट शुड मेक ए पॉलिसी फॉर द रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ना बहुत सोसाइटी में डिसबैलेंस हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर टाइप 2 की हम बात करें, टाइप 2 में जो है रिएक्टिव मशीन, थिंकिंग ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब सोच लीजिए कि इंसान में
कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, इमोशंस है, ये सारे के सारे चीजें हम मशीन में देने जा रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। तो सब कुछ आ गया, फिर इंसान के लिए प्रॉब्लम हो सकती। कभी कभी सवाल लोग करते हैं, ये यहाँ पे आपका भी जहन पे सवाल हो रहा होगा कि सर उसको तो मशीन को तो इंसान ही तो बना रहा है, तो इंसान कंट्रोल कर लेगा। तो इंसान तो ठीक है, जो बना रहा है वो कंट्रोल कर रहा, मशीन बना दिया, लेकिन कई दफा आप ऑटोमेटिक चीजें देने जा रहे हैं ना। ऑटोमेटिक दे दिया आपने उसको, मशीन को ट्रेन कर दिया, फिर उसका आपका कंट्रोल नहीं है, वो जो आप कहे दे करेंगे। आप हो सकता है लॉजिक देकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कर जो डेवलप करो वो कर सकता है ना। आम जनता तो नहीं ना, आम जनता के ऊपर तो इफेक्ट हो ही रहा है ना, आम जनता तो सफर करेगी ना, जो इस फील्ड के नहीं है। जॉब तो मिलेगी इस फील्ड में, इसीलिए आज के डेट में देखिएगा हर यूनिवर्सिटी कोर्स चला रही है, इवन की डिपार्टमेंट खुल गया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस, और यही है फ्यूचर, सबसे ज्यादा फ्यूचर इसी में है। तो दैट ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमने देख लिया एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब दूसरी पहलू को देखते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, फिर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन को एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो अब देखिए एजुकेशन, एजुकेशन भी आया, जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री 1.0, 1.2.0, 3.0, 4.0, 5.0। सिमिलरली इन एजुकेशन 1.0 से लेकर एजुकेशन 5.0। अब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ कंबाइन करेंगे, यूज करेंगे टेक्नोलॉजी को इन, और टेक्नोलॉजी कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है एजुकेशन में। एजुकेशन 1.0 था जिसको कहते हैं लेक्चर एंड मेमोराइजेशन, यानी कि उस टाइम एजुकेशन 1.0 में हम डस्टर, चौक एंड ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। हम क्या करते थे, बुक पढ़ते थे, पढ़ने के बाद हम मेमोराइज करते थे और क्लासरूम में जाकर हम लेक्चर को डिलीवर करते थे। दैट वाज एजुकेशन 1.0। उसके बाद टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो गया एजुकेशन में। तो जैसे ही एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, उसका नाम बदल कर हो गया है एजुकेशन 2.0। उसको हम कहते हैं इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद आया, फिर हम उसमें नॉलेज बेस्ड एजुकेशन देने की बात की। तो जब नॉलेज बेस्ड एजुकेशन दिया, वो बन गया आपका एजुकेशन 3.0। देन आज के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा हुआ एजुकेशन 4.0, दैट इज द इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन। एंड कमिंग फ्यूचर में जो एजुकेशन आना है, एजुकेशन 5.0, दैट विल फोकस्ड ऑन इथिक्स एंड ह्यूमनिज्म बेस्ड एजुकेशन। यानी कि थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन देख लीजिए। एजुकेशन 1.0 को हम कहते हैं पैसिव टीचर सेंटर्ड रोल लर्निंग, यानी कि ये एजुकेशन था प्री 20th सेंचुरी। एजुकेशन 2.0 मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड क्रिटिकल थिंकिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी कि एजुकेशन 2.0 से टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो गया है एजुकेशन में। द एजुकेशन 2.0 दैट इज द 20th सेंचुरी। एजुकेशन 3.0 दैट इज द पर्सनलाइज्ड डिजिटल लिटरेसी 21st सेंचुरी स्किल्स। अर्ली 21st सेंचुरी एजुकेशन को हम एजुकेशन 3.0 करें। देखिए आज के डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो में एजुकेशन है, उसको कहते हैं एजुकेशन 4.0, दैट इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोलैबोरेशन इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स। यानी कि अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, अब हो रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कहते हैं एजुकेशन 4.0।
And the future education, that is the education 4.0, 5.0, that will be the holistic इमोशनल इंटेलिजेंस. आजकल देखिएगा बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दैट इज द फ्यूचर. तो आपने थोड़ा बहुत आपने ओवरव्यू देख लिया एजुकेशन का. अब हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एजुकेशन में. तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. हम जब एजुकेशन में काम करते हैं तो हमें क्या करना है, उसमें एजुकेशन में इनोवेशन लाना है. इनोवेशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है. मान लीजिए कि हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं ट्रेडिशनल, उसी चीज को अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों को और ज्यादा समझ में आएगा. यानी कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसी को डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा. आपका भी नॉलेज इनहेंस होगा, स्टूडेंट का भी नॉलेज इनहेंस होगा. सो द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस टू द कंप्यूटर, people have devised tools for facilitating learning and the communications. अब देखिए, अब बात यहाँ पे एक और डिबेट हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है. कुछ लोगों का मानना है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों को लगता है कि डस्टर चौक की पढ़ाई अच्छी है. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मॉडर्न टीचिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए. तो यह सवाल है कि जो टेक्नोलॉजी का, अब यहाँ पे सवाल है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना सही है या गलत है. तो देखिए, द टेक्नोलॉजी इज नॉट इनहेरेंटली गुड और बैड, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज यूज्ड. अब देखिए, टेक्नोलॉजी को यूज करना एजुकेशन में बैड और गुड नहीं कह सकते हैं. ये डिपेंड्स करता है कि आप उसको यूज कैसे करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको. मान लीजिए आपको मॉडर्न टीचिंग में पीपीटी से पढ़ाना है, दैट इज द टेक्नोलॉजी एंड यू आर गोइंग टू यूज इन द एजुकेशन. अब उसका देखिए बैड यूज कैसे लोग करते हैं और गुड यूज कैसे. मान लीजिए कि आपने पीपीटी बनाया, आप सारे टेक्स्ट उस पर लिख दिया और क्लासरूम में जाकर लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं. तो वो कोई भी इंसान, चाहे उसके पास नॉलेज हो या ना हो, पीपीटी दे दीजिएगा, वो प्रेजेंट करेगा, रीड कर देगा, तो कोई भी पढ़ा सकता है. दैट इज द बैड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो, पीपीटी को रन कर दिया, रीड कर दिया, तो वो एनीवन कैन रीड इट. दैट इज द बैड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. नाउ गुड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, जो ग्राफ को ब्लैक बोर्ड पर बनाने में बहुत टाइम खराब होगा, टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए आप पीपीटी में ग्राफ बनाइए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. कोई वीडियो दिखाना है, उसके लिए पीपीटी का यूज करिए. कोई पॉइंट लिखना है, उसके लिखिए, लेकिन आप उसको क्लासरूम में एक्सप्लेन कीजिए. बहुत बड़ा इक्वेशन है, लिखने में बहुत टाइम लगता है, इक्वेशन दिखाइए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. दैट इज द गुड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. इसीलिए टेक्नोलॉजी गुड और बैड नहीं होता है. ये डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे करें. चलिए, नाउ अब हमने दो चीज देखा अलग अलग. एक तो देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा देखा एजुकेशन. अब दोनों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं. तो देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, यानी क्या क्या एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन एजुकेशन. तो फर्स्ट वन, यू नो, एडाप्टिव लर्निंग. सेकेंड वन, चैट कैंपस. थर्ड वन, ऑटोमेटेड ग्रेडर. नेक्स्ट है वर्चुअल फैसिलिटेटर. नेक्स्ट है स्मार्ट कंटेंट, डेटा एक्विजिशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड प्रोक्टर. अब चलिए हम इसको
एक एक पॉइंट को, एक एक एप्लीकेशंस को डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसी पीपीटी पे। एक ही पीपीटी और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडाप्टिव से पहले देखते हैं। जस्ट लेट अस explore the opportunity AI application can provide in the field of education. You know, the use of artificial intelligence is advancing in every sector at fast pace, including education. हर सेक्टर में, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। You can say it is disrupting the traditional teaching methodology through its learning algorithm. यानी जो ट्रेडिशनल टीचिंग है हम उसको चेंज कर रहे हैं लर्निंग algorithm से. The algorithm indeed are helping the teacher to uplift the students in a more personalized and responsible manner. The application of artificial intelligence in education is offering opportunity for the student engagement against the typical four-walled classroom. Though AI can replace our teacher, AI applications are used in one or the form today in education. अब एक बात देखिए, यहाँ पे भी डेंजर हो रहा फॉर टीचर के लिए. आने वाले दिनों में टीचर की भी नौकरी जा सकती है और एआई बेस्ड टीचर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, बन सकता है. मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं. मैं एक जगह पे मैं चीफ गेस्ट था कॉन्फ्रेंस में. यही बात कहा कि लोगों की नौकरी जाएगी, टीचर बन जाएंगे एआई बेस्ड डॉक्टर बन चुके हैं. एक इंसान, एक पार्टिसिपेंट खड़ा हुआ, बोला कि सर हमारे साउथ में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और मेरी नौकरी चली गई. तो सोचिए, अगर एक टीचर को 2 क्लास दी जा रही है और तीसरा देने पे मना करते हैं. एआई बेस्ड टीचर को आप जितने भी पेपर देना चाहें आप दे दीजिए, वो पढ़ाएगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और कभी थकेगा भी नहीं, पूरे टाइम काम करता रहेगा. तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी. और आने वाले दिनों में आप देखिएगा एआई टीचर बन जाएगा. जैसे अभी आपने देखा होगा, सना का नाम सुना है, लिसा का नाम सुना है. दे ऑल आर द न्यूज एंकर. आप टीवी पे देखते होंगे. प्रैक्टिकली टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके कि आप एआई टीचर कैसे बना सकते हैं वर्चुअली. अभी लास्ट में देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि यू कैन मेक द वर्चुअल टीचर हु कैन टीच इन द क्लासरूम. वर्चुअल की बात कर रहा हूं, नॉट फिजिकल. फिजिकल भी बन जाएगा, उसके लिए बहुत सारे चाहिए, लेकिन मैं प्रैक्टिकली करके आपको बता दूंगा. जैसे न्यूज एंकर बनाना है आपको, कैसे बनता है न्यूज एंकर. कुछ भी नहीं है, आपका फोटोग्राफ होगा, आप टेक्स्ट लगेंगे, उस टेक्स्ट को एआई मशीन कन्वर्ट कर देगा वॉइस में और आपके मुंह से आवाज आएगी और लगेगा कि आप बोल रहे हैं. ये हम करके भी दिखाएंगे आपको, टाइम मिलता है तो. So no, you know, there are 9 applications that's shown on the PPT on the screen. 9 applications. So let us see first one in details. Adaptive learning. What is adaptive learning? Just you have to understand. It is one of the promising application for the benefit of students. बहुत ही प्रोमिसिंग एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट को बेनिफिट देगा. एआई इन स्कूल्स help the student for adaptive learning by tracking their academic progress, modify the course or its learning space, informing the teacher about the difficulty in comprehension and more. तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है एडेप्टिव लर्निंग. दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सेकेंड वन,
that is ऑटोमेटेड ग्रेडर। एक एप्लीकेशन एआई का जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक ग्रेडर। तो ऑटोमेटिक ग्रेडर हैज ए लॉन्ग वे टू गो। सेवरल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूजिंग द ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम। अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम करना है स्टूडेंट को, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपके स्टूडेंट को ग्रेडिंग सिस्टम कर देगा। At an initial phase, the teacher submit a graded easy as a sample to distinguish good and bad easily. The software accumulate the knowledge at its grade more usage and provide a specific feedback instantly. However, the robo grader replaces a part of the grading system, and human grader is always there for the further assessment. So this is the another applications of artificial intelligence in the education. Third applications of artificial intelligence in education, that is chatbot. Chatbot का नाम सुना होगा आप लोगों ने। A student's evaluation is necessary as it gives a valuable information and also need and elevations from the existing setup. The artificial intelligence driven chatbot seems to be promising in the increasing the feedback quality. The chatbot collects the students' opinion through dialogue interface as if it is a real interviewer and look region 2 for varied opinion. So this system is unbiased. Next is Chat Campus. As the name it indicates, you can chat with AI to know the campus. You can chat with AI to know the campus. You can understand the life on the campus, like searching a lectures and horse, or just like you can enjoy, you can talk to the machine. Just like applications procedure for the next semester. आपके कैंपस में बच्चे बातें करते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या कोर्स चल रहा है, क्या बातें हो रही है, मतलब क्या पढ़ाएंगे. And also get the assignment in the chat campus and know the cafeteria, parking lot, library, campus event, interview and many more things. इसको कहते हैं chat campus. Next application, that is data accumulation. Data accumulations में applications of artificial intelligence in education में next है data accumulation. Artificial intelligence in education can suggest a related content for the student. यानी कि स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा रिलेटेड कंटेंट चाहिए, उसके लिए वो डेटा एक्युमुलेशंस में सजेस्ट कर देगा ये, जो बच्चों को बहुत ही मददगार साबित होगा. फॉर एन एग्जांपल, if you are looking into a preposition part of English grammar, it may suggest further readings on a complete part of a speech as a whole or other part of a speech like noun, such as noun, adverb and etc. मान लीजिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग, it is an event that the pace and need for learning different from one learner to another. Accordingly,
The learning instruction and approach should vary and optimize optimize for the individual benefits. Artificial intelligence in education can adapt quickly to the individual needs and deliver personalized learning methodology and activities driven by the learner interest, and it incorporate the complex task readily and accelerate the learning task too. So data accumulation बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पर्सनलाइज लर्निंग यानी जो उसको जरूरत की चीजें हैं वो मिल जाती है. नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज proctoring. Next is here proctoring is the applications of artificial intelligence in education. Just understand the proctoring. Everyone know about the e-learning. So e-learning, the future of learning needs supporting technology. AI power system ensure the authenticity of a student to take the exam and prevent from the cheating. यानी कि आपने देखा होगा आज लॉकडाउन के पीरियड में अगर हम बात करें तो हम ऑनलाइन पढ़ाई किए थे, तो बच्चे भी बोल रहे थे हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे. तो ये कंसेप्ट आया उस वक्त हर एक यूनिवर्सिटी में कि प्रोक्टर्ड एग्जाम होगा. ये आप सुना होगा. दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि प्रोक्टर्ड एग्जाम में हम इसको यूज करते हैं लर्निंग में कि बच्चों को हम कैसे चीटिंग करने से मना कर सकते, चीटिंग नहीं करने देंगे. इसको प्रोक्टर्ड एग्जाम बोला गया था लॉकडाउन के पीरियड. तो दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ artificial intelligence in the education. It can be used for attending competitive exam, a school college admission test, promotion and many more. जो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं. एडमिशन टेस्ट है आपका या कोई कंपिटिटिव एग्जाम से, वहां भी प्रोक्टर एग्जाम आपको से मदद ले सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ applications of artificial intelligence in education, that is the smart content. Smart content creation is already introduced in the primary and secondary school, college and the corporate environment. ये ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा. किसको इंट्रोड्यूस किया गया कि स्मार्ट. स्मार्ट का मतलब होता है जो. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, चलो डिस्कशन में करेंगे. आज के डेट में हम लोग सब लोग स्मार्ट बोलते हैं. देखिएगा, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट स्कूल, स्मार्टफोन. मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि आज के डेट में हर एक इंसान इसको स्मार्ट ही क्यों कहता है, इंटेलिजेंट क्यों नहीं कहता है. इस पर डिस्कस करेंगे हम. क्वेश्चन आंसर सेंसर में मुझे याद दिलाइएगा कि क्यों स्मार्ट बोलते हैं. अभी मैंने बात किया स्मार्ट कंटेंट. विद द हेल्प ऑफ एआई द टेक्स्ट बुक could be split into a small chunk of digestible guide which is easy to read and understand. The study guide include flashcard, MCQ, fill in the blanks, pointers, true false, chapter summary, and for instance एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि क्रेम 10 नेक्स्ट लर्निंग टूल है जो स्मार्ट कंटेंट को क्रिएट करता है. जैसे हमारा CREM 101. तो स्मार्ट कंटेंट को क्रिएट करने के लिए भी टूल्स है, तो वहां पे भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन है वर्चुअल फैसिलिटेटर. Virtual human are not welcome in the place of a human instructor. Virtual instructor could be used in the educational
and theoretical environment, it can think, act, and react to the student queries and act as a assistant for the teacher. कई दफा हम क्या करते हैं, टीचर जो है वो हेल्प की जरूरत होगी, तो AI based machine can also assist the teacher to help the teacher if teacher facing any problem. So these all are the applications of artificial intelligence in education. ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हम तो टाइम आपको बहुत चीज बताना चाह रहे, कि टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि अब हमारे पास 8 मिनट रह गया, क्वेश्चन आंसर ले लेते, फिर कोई नहीं, इसके बाद आगे कर लेंगे, अब आगे टाइम है। ये स्लाइड के बाद या ऐसा करते हैं, हमारे पास 5 मिनट टाइम है, तो क्वेश्चन यही समय नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब नाउ आई हैव 5 minutes फॉर द क्वेश्चन आंसर, सो आई एम स्टॉपिंग हियर in the example of AI in education. We'll start in the next session from here. So now platform is open for the discussion, and if you have any query and question, come forward, feel free to ask the question. Yes, dear participants, do you have any query, any question for this session? And next session we will start from here. तो चलिए, कोई जहन पे आपके क्वेश्चन है, सवाल है, तो मोस्ट वेलकम, आप पूछिए। क्या कोई भी सवाल नहीं आपके जहन पे? जी बोले। सर मैं डॉक्टर मनोज बिष्ट हूँ सर, कंप्यूटर साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से। सर खुद मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं और खुद मशीन लर्निंग पे काफी रिसर्च करा रहे हैं, लेकिन सर आप इतने सीनियर मोस्ट हैं और आपने स्वयं खुद कहा कि आने वाले टाइम पर सारा अगर मशीन करने लग जाएगी तो सर इंसान का क्या होगा। बिल्कुल। तो सर ये कब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा मतलब हम देख रहे हैं साइंटिस्ट वाला हम टूल्स बनाते जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट करना चाह रहे हैं वो मशीन कर दे रही है, तो सर बाकी फील्ड का भी क्या होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सोचना है। हम ये नहीं कि हम इस फील्ड में है तो उसको तारीफ करेंगे, अगर हम गलत हैं तो गलत हैं। मैंने कई दफा अपने स्पीच में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पॉलिसी बनानी होगी जो कि एक लिमिट तक रिसर्च करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैंने कहा कि अभी तक तो ठीक है, आप AI में करिए, जहां पे लोगों को फायदा हो रहा है करिए, AI से फायदा भी हो रहा है लोगों को, तो फायदा तक तो करिए, लेकिन जैसे ही जनरल AI की तरफ जब रिसर्च बढ़ेगा, ह्यूमन को जब माइंड को कंट्रोल करने लगेंगे, तो एक लिमिट होना चाहिए कि यहाँ तक आपको करना है। देखिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि गांव में आप रोबोटिक मशीन आ गया तो लेबर को तो नौकरी जाएगी ना, तो हमें सब चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मनोज जी। जी सर। तो बैलेंस करके चलेंगे तो चल जाएगा। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जी सर। आप लोग चैट जीपीटी के नाम सुना है? जी सर। और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ 1 घंटे के अंदर चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से अच्छे पेपर आप लिख सकते हैं। यस सर। लेकिन उसके लिए टूल आ गया, आपको टर्निटिव में, उसको आप यूज करेंगे तो पकड़ लेगा कि मशीन जनरेटेड है। जी सर। है ना? लेकिन मैं टेक्निक आपको बताऊंगा AI का कि टर्निटिव भी नहीं पकड़ पाएगा आप चैट जीपीटी से लिखा गया पेपर। पता है आप लोगों को? नो सर। मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको कि चैट जीपीटी से लिखिए, और कोई भी डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर है, टर्निटिव सॉफ्टवेयर है जो AI कोलैबोरेटेड, टर्निटिव विद AI, वो भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो नए नए टेक्निक लोग डेवलप कर रहे हैं। बस अब यहाँ पे आएगा एक ही आपका इथिक्स। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी जनरेट करो और कोई भी आपको प्लेगियरिज्म चेकिंग टूल है उसको पकड़ नहीं पाएगा। ये लास्ट वाले सेशन में बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम तो प्रैक्टिकली में बताएंगे। ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एनी मोर क्वेरी, एनी डिस्कशन? सर एज पर जैक मा, जो अपने चाइनीज अलीबाबा के फाउंडर हैं, he says के जहां टेक्नोलॉजी खत्म होती है, ideally the human brains start from there. Now that means the humans are creating technology
and technology will never have the power to create humans. तो humans को एडवांस करने के लिए, उनके ब्रेन को और सोफिस्टिकेटेड करने के लिए और रिफाइन करने के लिए द टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस. जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच गई वो हमें बता रही है कि रिसर्चेज में इंटरनेट के डिफरेंट डेटा सोर्सेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, व्हाट रिसर्चेज वी हैव ऑलरेडी डन. उसके आगे की रिसर्च ह्यूमन ने करनी है. तो मुझे लगता है कि जो इसकी अच्छाइयां हैं वो कहीं ज्यादा हैं इस बात से कि इसमें कुछ कमियां हैं. कमियां हो सकती हैं, कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है, बट इट इज मोर बेनिफिशियल टू द ह्यूमैनिटी बिकॉज जो ऑलरेडी इवॉल्व्ड ब्रेन्स हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग टू टेक इट फर्दर. योर कमेंट्स ऑन दिस? ओके सर, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया. हम जो बात कर रहे हैं ना, देखिए टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, हम पहले ही शुरू में कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है. हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, डेवलप करते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं. लेकिन और टेक्नोलॉजी से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बात हो गई कि वी आर गोइंग टू जनरेट अ ह्यूमन बीइंग. अगर हम दूसरे, अगर चलो हेल्प के लिए काम, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. कंट्रोल द माइंड ऑफ ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? बख्तियार खान साहब जी, है तो आपको लग रहा है किसी के माइंड को हम कंट्रोल कर रहे हैं? गलती है. गलत है ना? रिसर्च पर्पस से तो वी कैन स्टिल डू इट. आप सुनिए सर, मान लीजिए, ये अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, अभी प्रेजेंट में तो सब ठीक है. जो भी मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि अगर हमने एक सिग्नल भेजा, आपका दोस्त आया और आपसे कहता है चलो चाय पी ले. हमने उसको माइंड को एक सिग्नल भेजा कि चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, उसका माइंड चेंज हो जाएगा. यह तो चलो अच्छी बात है. वाइफ ने कहा कि 1.5 लाख की साड़ी खरीदनी है मुझे, और आप चाहते हैं कि हम वो साड़ी ना खरीदे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है. अब वाइफ को मना नहीं कर सकते आप, तो क्या करेंगे, एक सिग्नल भेजा कि ये साड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पैसा बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है. थोड़ी देर में वाइफ आपको बोली कि सुनिए जी, ये हम साड़ी नहीं खरीदेंगे, ये बेकार है. चलो यहां तक तो ठीक है. तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो. यहां तक तो बहुत अच्छा है, ये तो बढ़िया है आने वाले फ्यूचर में. लेकिन अब इसका निगेटिव पहलू देखिए. अगर किसी ने आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करके कोई गलत काम करवा दिया, तो दैट इज द डेंजरस. बख्तियार खान साहब, अगर हमने वो कंट्रोल किया और आपको गलत काम करने के लिए प्रमोट कर दिया, तो वो तो इंसान मर जाएगा ना. आपने एक देखा होगा, बड़ी, मैं बात कर रहा फ्यूचर की, एक फिल्म आई थी, आप परिचित देखिए. परिचित में दिखाता है कब इंसान का माइंड बदल जाता है कोई नहीं जानता, और क्या चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है. कई दफा देखा होगा, सुपरस्टिशियस बातें करते हैं हम लोग गांवों में, बाबा और इस तरह की चीजें आ जाती हैं. सुना होगा, देखा होगा कैसे कंट्रोल करते हैं माइंड को और दिखा देते हैं कि ये होने वाला है. आज के डेट में हर जगह लोग एआई का कंसेप्ट यूज कर, जिसको नहीं पता है, और कर लेते हैं माइंड को कंट्रोल. सुपरस्टिशियस फिक्टिशियस चीजें भी है, वो आज फिक्टिशियस चीज आपको दिख रही है ना, वो आप कर सकते हैं एआई के जरिए. तो बैड डेंजरस भी है. आपको सेटिस्फेक्शन मिला कुछ, ठीक है. बख्तियार खान साहब, बिल्कुल सही कहा सर आपने. मेरा जो कंसर्न है बेसिकली वो ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दैट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. yes, They know that the developing world is talking on these lines, and we are more concerned about the human aspects of the technology. But the Western world, they are blindly going ahead very fast, and I don't know. I mean, there are only few things which are available in the market that the public can see in the general domain. But they have done a lot of things which are not even open. And I don't know, कहाँ तक वो लोग पहुंच गए अपने डेवलपमेंट में, वो एक्चुअल कंसर्न है. बिल्कुल. यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, ऑफ कोर्स. इसलिए मैं कह रहा हूँ ना सर कि मैं अभी कई लोगों से डिस्कस किया और बात किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में 8-10, आप देखिएगा सिर्फ 7-8 साल के बाद आप देखिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में.
मैंने कई जगह ये कहा कि देयर शुड बी ए पॉलिसी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, और आज के डेट में देखिएगा न्यूज में आ जाएगा आपको कुछ दिनों में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पे पॉलिसी बना रही है, और इंडिया का क्या सबको बनाना होगा, अदरवाइज आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा। तो आपको नोट मिल जाएगा नोटिस कि किस लेवल तक आप रिसर्च कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते एआई में। ठीक है, हाँ जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये पूछा अभी हमारा नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है और एआई का उसमें अभी कहीं पर हम ग्रेजुएशन तक जो नॉर्मल कोर्सेस हैं उनमें तो कहीं इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। थोड़ा जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, कंप्यूटर ले रहे हैं, उनका तो है। तो अभी एआई की अवेयरनेस अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट हो किसी तरीके से तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत जल्दी इसका पता चलेगा, वरना अनअवेयरनेस बनी रहेगी बच्चों में जो नए बच्चे आ रहे हैं। एक बात बताएं सर, क्या नाम है आपका? संजीव जी। जी संजीव जी, एनईपी में फोकस किया गया एआई का, आपको पढ़िएगा उसको, उसमें कहा गया है कि यूज इनोवेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज द क्रक्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, recent technology in education, that is the crux of NEP, collaborative multidisciplinary education, holistic education। वहीं पे इनोवेशन टेक्नोलॉजी में ही आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना ही है। जो एजुकेशन 4.0 चल रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको पढ़ाना है। ये मैं कह सकता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द डिसिप्लिन। जहां जहां डेटा है, चाहे वो आप, ये नहीं कि कंप्यूटर साइंस का इस पे अपना ये है, ये कंप्यूटर साइंस आप नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं आप, चाहे वो ह्यूमैनिटीज है, लैंग्वेजेज है, सोशल साइंस है, सब जगह। अब उसका ये नहीं है स्पेशल के कंप्यूटर साइंस, ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट सबका हो गया है। ठीक है जी संजीव जी? जी समझ में आ गया। आ गया ना? देखिए बच्चा अभी ये कॉलेज लेवल पे हमारे पास मतलब कोलैबोरेशन के थ्रू ला सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में अभी कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। करना चाहिए, अभी हुआ ही नहीं कुछ, सच बताऊं आपको। एनईपी में बहुत कुछ हुआ नहीं, ये करने की जरूरत है, बस वही सर, बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी 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 सर, एनी मोर क्वेश्चन? Why we call this smartphone? That said, जी इरफान साहब, स्मार्टफोन बोला था आपने, तो बोलते हैं स्मार्टफोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज के डेट में ना हम सब लोग कहते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। तो आपको पता है किसी को कि स्मार्ट ही क्यों कहते हैं? इंटेलिजेंट भी तो कह सकते हैं। किसी को कोई आइडिया है? कुछ कमेंट देना चाहते हैं कि स्मार्ट क्यों कहते हैं आखिर? स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, आइडिया है किसी को? कमेंट करना चाहते हैं, मैं बताऊं? ओके, मैं बता रहा हूं। स्मार्ट का मतलब दो मीनिंग होता है। आप किसी स्टूडेंट से कहिए कि यू आर लुकिंग स्मार्ट, बहुत ही खुश हो जाएगा, और उसे कहिए डोंट बी स्मार्ट, दुखी हो जाएगा। यानी स्मार्ट का मतलब होता है सर्व गुण संपन्न, यानी हर एक क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, उसको स्मार्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हैं, 10 लोग आ गए, आपको घेर लिए, तो वहां पे स्मार्ट अगर है तभी वहां से निकल पाएंगे। तो स्मार्टनेस का मतलब हो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मेक द प्लान, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मोबाइल फोन में देखिएगा, स्मार्ट में हर चीज आपको अवेलेबल होगा, यानी एवरीथिंग। सो इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, हम उसको स्मार्ट बोलते हैं। जी समझ में आ गया? इसीलिए स्मार्ट कंटेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट चीजें हो वो जरूरत पे मिल जाए, टाइम पे मिल जाए और इमीडिएटली मिल जाए, उसको स्मार्ट कहते हैं। इसे मान लीजिए जा रहे हैं आप, ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपको उसको स्मार्टली हैंडल करना है ना? तो अब समझ में आ गया? ओके, एनी मोर क्वेरी? और भी कोई जहन पे है सवाल, या स्टॉप किया जाए फॉर द नेक्स्ट सेशन?
Okay, sir. Move for next session. ओके, तो हम मिलते हैं फिर कितने बजे? 5:30. ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर Thank you. अभी ठीक है, ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू stop the session. Thank you very much. We'll Thank meet you, at sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.